I was not BBC. I was not New York Times. Yes. I was not any of those things. It was just simple drive and a little goodwill. इकबाल का शेर है राम के वजूद से हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हौस काजी में उन्होंने साहब ये देखिए ये भांग पी रही है, ठंडाई जिसे कहते हैं, जी जी जी, ये साहब इनको अच्छी लगी। घर में मैंने इनसे कहा, बीवी से, अरुणा से, भाई देखो मैं मर रहा हूँ। वो साहब 1 रुपया देते थे अगर उन्होंने सुन लिया कि किसी ने अजान दी है जाके। दिस पियानो, डू यू प्ले पियानो? नहीं साहब, ये हमारी ग्रैंड डॉटर के लिए लाया गया था। तो इसलिए मदरसा जो चीजें तुमको अलग करती हैं, मेरे ख्याल में उनको धीरे धीरे फेज आउट करना चाहिए। Hello and welcome to The Matrix. Today we are at Saeed Naqvi Saab's New Delhi residence. Saeed Naqvi Saab, as we all know, is a senior journalist who has set gold standards of journalism. As a commentator, he's enjoyed a career which any journalist would aspire to have. Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev, Shimon Peres, Henry Kissinger, Gaddafi, the Beatles, I can go on and on about the list of people he has interviewed. And we have the privilege of speaking to you at his residence. Sir, welcome to The Matrix and Adab, sir. Welcome. How are you, sir? आप कैसे हैं, sir? How are you? Very well. Thank you. Lovely. So, welcome home. Thank you, sir. We are honored to be here with you. And this place which you've done is really fascinating. So let me begin by... This is the handiwork of my wife. I see. Okay, you give full marks to her. Yes, okay. Yes. So, sir, I begin by asking you that as a journalist, you started your career with the print. You were a staff reporter with the Statesman. Then you had also become the resident editor of Indian Express. No, not really. No, that's not true. Okay. Let me tell you. And thereafter, you wrote for national, highly reputed international publications. But my question is, sir, that, correct me if I'm wrong, that your fame came with television journalism. Is that right? Reputation came with print. Fame, because that is the nature of the beast, the television, that is. Although the television that I mostly worked for had not taken off on the scale that we see in India and worldwide today. When I started, there was just one channel. Little bit I did for Star World, otherwise it was largely for Doordarshan. Right. And but as I said, reputation, print. Right. Name, popularity, television. Nelson Mandela, Gorbachev, Henry Kissinger, Gaddafi, the Beatles. These are all names that those were unthinkable of, for any journalist to interview at that point of time in early 80s or so. So it must have been really challenging. What were the struggles and what were your memories? Can you share some of your memories, sir? Well, first, the opening that I got was with the Statesman as a print. Right. The Statesman, well, I already had some aspirations to travel. I had taken up and applied and got a job more or less nearby Air India at Janpath, then Queensway. At the end, there was the Air India office. I had got a job there, but I wanted to travel. But during the interview, they asked me, have you
applied elsewhere? I said, yes. Where else? I said, the Statesman. They paused. They said, what kind of a beast is he? He is coming here for Air India. And Statesman in those days was sort of creme de la creme. It was a very, very, it was easier to get into the Times of London, but not into the Statesman. So when I said, then they said, listen, pause. You get your interview done, and then we can come back again later. So I went and I borrowed my friend Pratap Nandan's, it was summer, so I didn't have a summer suit. So I borrowed his summer suit. And I went and met the editor, Englishman, who was the acting resident editor of Delhi. Editor was in Calcutta. So he went through the corridor, entered the room, aroma of cigar smoke, Java Dawson on his table, and he was looking at a scroll of teleprinter paper. And then he looked over at me and said, please sit down, he said. I sat down and he said, what have you written? I said, I have written poetry. So he said, he thought, what kind of a fellow have I got? He got up, he took me around to the rack of Statesman copies. He flipped through, opened to New Delhi Notebook. It was a very prestigious column that the editor edited. Everyone contributed to it. It was a weekly column. He showed me that. He said, listen, can you sit here and write 400 words? अरे मैंने कहा पता नहीं क्या कहेगा ये, समझे, मेरी बोटी कापी. He said, can you write 400 words on mangoes? Relief. मैं मुस्तफाबाद का हूँ. जी, of course. अवध का. जी. और वहाँ आम हमारे यहाँ होता है. जी. तो हम आम के वो नाम, वो किस्से और लतीफे और गालिब और ये वो सब मैंने एक, हालांकि वक्त लगा, 1.5 घंटा लगा मुझे, मैंने उनको लिख के कागज दे दिया. उन्होंने यूं देखा, उसने कहा कि देखिए आप जाइए, हम कुछ नहीं कह सकते. I have to send it to Calcutta. So, thank you. So I left. मैंने कहा इसने छुट्टी कर दी. ये तरीका है शराफत में छोड़ देने का कि जाओ मियाँ, तुम हमारे मतलब के नहीं हो. निकला बाहर साहब, और मैं अपने मामू के साथ रहता था. और मगर इन लोगों को मालूम होता कि जिन मामू के साथ मैं रहता हूं वही 2 बिल्डिंगें छोड़ के वहां 24 नंबर 12 खंबा रोड पे काम करते थे. वो था सोवियत यूनियन का इंफॉर्मेशन सेंटर. और सोवियत यूनियन भूत, कम्युनिज्म भूत. और मैंने जब अगर ये बताया नहीं उनको शुरू में, जी. तो बहरहाल मैंने जाके, वो बेचारे मामू हमारे, अल्लाह, ये है इनकी तस्वीर, इन्होंने हमें शेप किया इन्होंने हमें, हमारे दिमाग को डेकोरेट किया इन्होंने. और उनके बाद खत आया. उनके पते पे करोल बाग में रहते थे, जोशी पथ. Dear Mr. Naqvi, even though we cannot offer you employment at the moment, we are willing to take you on as an apprentice trainee for a period of 6 months. Wow. At the end of the training period, we do not guarantee you employment. Okay. But the training you will have received here will stand you in good stead in finding work elsewhere. Wonderful. During the training period, we'll give you, guess. Stipend? Okay. Yes. At that point of time, sir, very difficult. A few rupees maybe? 300 rupees a month. अरे मैं दौड़ के गया अपने दोस्त सक्सेना, विमल सक्सेना, हिंदुस्तान टाइम में था. मैंने कहा यार ये तो मर गया, 300 में क्या होगा? कह रही, you idiot, you are on to the best newspaper job
in the country, if Yes. not the world, he said. Absolutely, sir. It was great. तो मैंने कहा Wow. भाई चलो, मैंने हाँ कर दी. So from print, sir, then of course we have these lovely pictures. फिर चलते रहे, चलते गए, पर वहां से जी खुद बड़ा उन दिनों में दिल्ली शुरू करते थे हम लोग. देखिए आजकल की तरह नहीं था कि आप आज आए और सामने पीस टू कैमरा किया, हीरो बन गए. बन गए. 10 साल रहना पड़ते थे तब बाई लाइन आती थी. Right. आपको जुडिशियल रिमांड क्या होता नहीं मालूम, लड़कों को पुलिस कवर करती. सो पुलिस, न्यू दिल्ली कोर्ट्स, पुरानी दिल्ली कोर्ट्स 30,000, जी. कॉरपोरेशन, एनडीएमसी. फिर धीरे 5 साल जब गुजर जाते थे उसके बाद आप पहला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको दिखाई देता था. जी. और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचते पहुंचते 15 साल लगते थे. 15 साल. समझे साहब. Absolutely. लेकिन जब तक होता ये था जी. कि यू हैड डेवलप्ड अ वेरी एलिगेंट indifference, irreverence to the nodal points of power. Right. पावर से मिलके आप गिड़गिड़ाने नहीं लगते थे, Right. क्योंकि यूं ऊपर तक गए थे. Right. तो लिहाजा तो तनख्वाहें कम थी, Right. इज्जत बहुत थी. Absolutely, sir. Your strength was that you could understand statecraft with ease, and you had a deep knowledge of international affairs, which truly made you a doyen of Indian. Deep knowledge I did Indian- not have. I learnt it on the trot. Right. By actually working. वो भी एक किस्सा है कि मैं जनाब अली, अगर आप इजाजत दे तो बैठ जाऊं. Sir, why not? Please, please, please. We've है ना कोई तशरीफ- आप तशरीफ. yes, yes, yes. देखिए ऐसा था जी. कि यहाँ स्टेशन में काम किया, जी. पसंद किया गया, मुझको जयपुर भेज दिया इन्होंने एज स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट विद इन 6 months. तो 6 महीने वो कंफर्म हो, प्रमोट हो गया. अरे साहब हुल्लड़ जेलसी होती थी. और एक बात में यहाँ पे रुक के कह, जेलसीज होती थी आपस में. जी. इतने लंबे करियर जर्नलिज्म में शुरू में जी. हर कदम पे कहीं ना कहीं आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ती थी कि भाई वो एक आदमी है, ये मेरी मदद करेगा. समझे. प्रमोशन में किसी तरीके करियर को आगे एडवांस करने में जी. मैं 5 तो गिनती के गिन सकता हूं. Right. और उनमें से आजकल का जो मौसम है, जी. आजकल जो कम्युनलिज्म फैली हुई है, जी. जी. जिससे कि लोग परेशान हैं, जी. उन दिनों में जनाब अली 5 के 5 सब हिंदू. ये नहीं कि मुसलमान इस पोजीशन में था ही नहीं कि वो मदद कर सके. और जो लोग इस पोजीशन पे होते थे जी. वो इस बात से कतराते थे क्योंकि वो कहीं उनकी सेकुलरिज्म डाउट में ना आ जाए, लिहाजा वो मदद नहीं करते थे. तो मियाँ सारी जिंदगी वही हिंदू जिसको कि आजकल कम्युनल हो गया है, वो नहीं थे. ये नए लोग. सोमनाथ चिब, प्राण चोपड़ा, कुलदीप नैयर. उसके बाद यहां से जनाब अली मुझे ये हुआ कि साहब आप इंग्लैंड जाइए ट्रेनिंग के लिए. थॉमसन फाउंडेशन में कार्डिफ में थी. तो एक मेरी दोस्ती हो गई थी. दोस्ती क्या हो गई, जान पहचान हो गई थी. हरी नंदा जो कि एस्कॉर्ट्स के चेयरमैन थे, उनका एक प्रेस था, थॉमसन प्रेस गुड़गांव में. जी. तो वो वहां मैं भेज दिया गया था स्टेट्समैन की तरफ से. लॉर्ड थॉमसन जो कि बाद में ओनर हुए टाइम्स लंदन के और संडे टाइम्स के, वो आ रहे थे और उसमें मुरारजी देसाई इनॉग्रेट करने वाले थे. अच्छा. तो वो उस फंक्शन को मैंने इनॉग्रेट किया. वो स्टेट्समैन में इत्तेफाक से डबल कॉलम में आ गया. और डबल कॉलम में गया तो उन्होंने बहुत पसंद किया हमारे. हालांकि सब एडिटर्स का था भाई,
डबल मैं थोड़ी कर सकता था। जी। और उन्हें हमसे बहुत दोस्ती हो गई उनकी, और उन्होंने फिर हमें घर वर बुलाया, हमको, हमारी बीवी को, जी। और घर बुलाया। एक दफा बड़े मजे की बात हुई, हरिनंदा के यहाँ जी। घर पे बैठे हुए हैं 2 मेहमान, कोने में लॉर्ड थॉमसन और एक अंग्रेजी, एक अमेरिकन टाइकून who could buy Lord Thompson over several times Okay. in his Searsaka suit with his wife, Hari, his sister, and me and my wife. Bas, ye group. Lord Thompson used to sit in a corner and crack very dirty jokes. That was his social contribution in life. I see. He would come to a party, sit in a corner and crack jokes. Okay. Those who could tolerate them, enjoy them, went and spoke to Lord Thompson. So, this tycoon came to me. Yes. And he said, Mr. Naqvi, tell me, how do you address a lord? वो उसको ये नहीं मालूम था, वो आदमी जो कि उस टॉमसन को खरीद सकता था कई दफे, उसको ये नहीं मालूम था कि लॉर्ड को एड्रेस कैसे करते हैं। तो मुझसे पूछा। खैर, तो जब मैं इंग्लैंड जाने लगा तो मुझे हरिनंदा ने कहा, तुम जा रहे हो तो रॉय से जरूर। मैंने कहा, रॉय कौन थे? वही टॉमसन। एक उन्होंने मुझे खत दे दिया लॉर्ड टॉमसन का, के नाम, डियर रॉय वगैरह। वहां जब मैं, संडे टाइम्स का दफ्तर था ग्रेज इन रोड पे, वहां जब मैं गया, वो ये खत पेश किया लॉर्ड टॉमसन को। जी। वो कैसे मिला, बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग है, देर हो जाएगी उसमें। राइट। तो उन्होंने फौरन हैरी एवंस एडिटर थे छोटे कद के, संडे टाइम्स बड़े डायनामिक एडिटर थे वो, उनको टेलीफोन किया। वो ऊपर था ऑफिस इनका, लॉर्ड टॉमसन को, वो नीचे संडे टाइम्स का दफ्तर था। कि उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक यू टू टेक हिम होम। मैं चला गया। अब हरी एवन, देखिए, एडिटर की आना से ज्यादा उसकी इमेज, कि ये ना हो जाए कहीं कि लॉर्ड टॉमसन ने इसको मेरे ऊपर थोप दिया है। तो उनको कुछ इस तरह से कंट्राइव करना था जैसे मैं उनका इनिशिएटिव हूं। अच्छा, समझे साहब? तो वो उन्होंने किया, और उन्होंने फौरन मुझे भेज दिया। इनसाइट टीम थी संडे टाइम्स की, बड़ी उससे ज्यादा डायनामिक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की टीम नहीं हुई आज तक। और उन लोगों ने, जैसे किम फिल्बी वो स्पाई था जो कि कैम्ब्रिज में कम्युनिस्ट हो गया। उसके बाद होते होते इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 ज्वाइन की उसने। वहां बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी का नंबर 2 टॉप पे हो गया, और वो था सोवियत एजेंट। एक्सपोज किया इनसाइड टीम ने। इस तरह के वो काम करते थे। तो वहां फिर मैं मेरे दोस्त हो गए बहुत सारे लोग। मुझे भी कुछ कभी कभी असाइनमेंट्स में भेजा गया। उन दिनों में वहाँ ये अपने क्या नाम था इनका, इनॉक पावल की स्पीच हुई थी। बाप रे बाप, कदम। उसने कहा था कि ये इमिग्रेशन जो है, इसकी वजह से रिवर्स ऑफ ब्लड मुझे दिखाई दे रहे हैं इंग्लैंड में। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई जरा इसके ऊपर एक फीचर करो। वो जहाँ का ये है लॉर्ड, ये इनॉक, उसका एक इंडिया का भी एक डायमेंशन था। वो यहाँ पे कर्नल वगैरह था फौज में। तो सब में वुल्वरहैम्पटन है उनका शहर, वहां गया पता चलाने के लिए कि इनका दिमाग ऐसा क्यों है, इसकी वजह क्या है। अब मैं पूरी वो लेन देख रहा हूं जिसमें इनॉक पावल रहा है। वो बड़ा सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर था मिसेस थैचर का। यहां से वहां तक सब वेस्ट इंडियंस, जो वेस्ट इंडियंस पूरी सड़क पे लॉन्डरेट उनकी,
बुचर शॉप, अब बुचर शॉप अंग्रेज के यहाँ एक सोशल चिटचैट का अड्डा होता था, जहाँ औरतें जाती थी, बुचर से बात करती थी, सब वो सब वेस्ट इंडियन यहाँ से वहां तक, एक वाहिद घर इनफ पावल का, बाकी सब वेस्ट इंडियंस। तो मेरे कुछ दिमाग में समझ में आया कि इसका दिमाग के फिर जाने में ये भी एक कंट्रीब्यूशन रहा होगा पर्सनल। खैर, तो इस तरह की बहुत से फीचर्स वगैरह किए संडे टाइम्स में। और एक चीज हमेशा से ये थी कि मेरी बीवी में भी और मुझ में भी कि हम लोग यहाँ पे रहेंगे नहीं, ये कर लिया, एक एक्सपीरियंस है, इसको लेके वापस जाएंगे। आना बड़ी थी, मैंने कहा ये जितने हैं ये हमारी इतनी इज्जत करने लगे हैं, दोस्त हो गए हैं, ये तब तक है जब तक कि हम इनको इमिग्रेंट ना दिखाई दें। ये मेरे दिमाग में था फतूर। मेरी बीवी कहीं बेकर स्ट्रीट में अखबार खरीदने के लिए बगल में, तो उन्होंने कहा कि उस मांगा, इवनिंग स्टैंडर्ड होता, 2 अखबार थे शाम के, स्टैंडर्ड और न्यूज। इवनिंग स्टैंडर्ड मांगा, उसने इनको इवनिंग न्यूज दे दिया। इन्होंने कहा कि मैं आई वांटेड द इवनिंग स्टैंडर्ड। He snarled at her. He said, next you'll ask for Hindustan Times. ये दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई कि भैया बंद रहो, ये जल्दी निकल चलो, ये ठहरने की जा नहीं। ये एक वाकया था, और वैसे भी हम लोग भी तय कर चुके थे, तो वापस आ गए। ये तो वहां संडे टाइम्स में मैंने, मेरे कॉलीग थे मरे सेल, वो भी फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट थे उनके, मरे से कहा गया मेरे सामने कि बाफरा में, नाइजीरिया के 2 हिस्से थे, नॉर्थ में मुसलमान और साउथ में क्रिश्चियन, बाफरन वॉर हो रही, जल्दी जाओ। ये गया, खिड़की से इसने पैसे लिए, नीचे लिमुजीन खड़ी थी, और वो जनाब घर गया, अपना सामान लिया। यार हमने कहा हमारे यहाँ कब ये होगा। तब से ये फतूर हो गया कि हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट दुनिया को अपनी आंख से कब देखेगा। मैं एक बात भूल गया, वो ये कि भाई इनके दिमाग जो शेप हुए हैं, ये एक जमाने में ब्रिटानिया रूल्स द वेव्स, द सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। तो इन सब के दिमागों में दिमाग इंटरनेशनल है। इनकी नजर में बायाफरा, नाइजीरिया इनकी कॉलोनी थी, अब वो बड़ी खबर थी। तो यहाँ वहां दुनिया भर में, हिंदुस्तान, सब जगह उनके जर्नलिस्ट जाते थे। हम लोग कॉलोनी रहे थे, और न जाने क्या गलत डील हमारी थी अंग्रेजों के साथ। अखबार बड़े अच्छे दिए, लेकिन बस ये तुम कवर करो। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए रॉयटर्स, बाद में एएफपी, और ना टाइम्स लंदन से ले लो, और कुछ बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स से ले लो। यानी अपनी नजर, अपना नजरिया दुनिया पे न शेप करने पाओ। तो हमारी सारी फॉरेन पॉलिसी एलीट अभी तक, इंक्लूडिंग आवर फॉरेन मिनिस्टर, ये वो माइंड्स हैं which have been shaped by Western perceptions of the world. So our minds are very, very colonized. आपको लंबा लेक्चर दे दिया मैंने। नहीं सर, बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग। बट नाउ हम टेलीविजन जर्नलिज्म की बात कर रहे थे। आपकी इस दीवार पे बड़े अच्छे फोटोग्राफ्स लगे हैं। जी ये अगर फोटोग्राफ्स हैं, आपको जी सर, आइए, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेल अस अबाउट दिस, आइए शेयर सम मेमोरीज। यस सर। ये तो जाहिर है कि मेरे घर का कुरान है, हैंड रिटन। ये हमारी जो परनानी है, ये बीच में जो खातून है, ये इनके वालिद के घर में दस्ती कुरान है, कोई 250 साल पुराना है ये। और ये तो गोया मुबारक बरकत है हमारे घर की। अब जनाब इधर आइए आप।
ये हैं सईद नकवी साहब। अच्छा, यहाँ पे से। जी, और ये होली पॉल खेल रहे हैं पॉल मैकार्टनी पॉल से। मैकार्टनी के साथ। जी 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 समझे साहब? जी। और वो हैं वो माइक लव उसके बीच बॉयज के, राइट। वो भी उन्हीं, ये जब महर्षि के यहाँ ये लोग आए थे तब। अच्छा अच्छा, महर्षि आश्रम में। उन दो में देहरादून। से एक मार्लन ब्रांडो है, पहचान लीजिए आप। 1965। ठीक है, यस सर। ये साहब शर्ली मैक्लेन है। ओके। शर्ली मैक्लेन आई, जी। उन्होंने ये सुना कि हिंदुस्तान में भांग लीगली मिलती। अच्छा। उन दिनों में ये मारिजुआना वगैरह का चक्कर विलायत यूरोप में शुरू हुआ था। जी 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 तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा मिलती। जी तो मैं शर्ली को लेके गया हौस काजी। जी हौस काजी में जी उन्होंने साहब, ये देखिए एक भांग पी रही है, जी ठंडाई जिसे कहते हैं। जी जी जी। ये साहब इनको अच्छी लगी, राइट। बादाम में घोट के बनाई गई। जी। सब एक मैंने भी ठोकी, अच्छा। हाँ एक इन्होंने ठोकी। जी फिर ये अच्छी लगी इन्हें, इन्होंने, हमने कहा भाई हम इनसे कम तो ना होना चाहिए। जी जी। तो एक मैंने भी लगाई। अच्छा। अब इसके बाद हमारे बहुत ही अजीज दोस्त थे नियाज हैदर साहब, शायर, जी वो उनकी तस्वीर है ऊपर, वो देखिए वो, जी जी। समझे? आए चलें सर, उधर ही चलें थोड़ा, अगर हाँ, क्योंकि नहीं नहीं, यहाँ पे और तस्वीरें मैं दिखा दूँ अच्छा आपको। जी, पहले यहाँ देख लेते हैं सर। जी जी आइए न्याज, आइए आइए, जी आपको न्याज न्याज चचा की तस्वीर में जी दिखा जी दूं। जी जी जी। ये जो थे जी। बाबा न्याज बाबा कहलाते थे। ये तो तब की है जब ये जी। रेवोल्यूशनरी थे तेलंगाना मूवमेंट में। ओ। उसके बाद फिर इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई थी, मार्क्स की तरह लगते थे देखने में। जी जी जी। है तस्वीर मेरे पास। हम्म। इन्होंने कहा बेटा इसको तुम भांग पिलाने ले जा रहे हो, जी पी लेना, हाँ। लेकिन उसके बाद बहुत सा खाना, जी जी और खाने के बाद सोचना। जी हमने कहा कि यार ये तो कुछ, इसमें कुछ हुआ तो है नहीं मुझे। जी 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 तो मैं अपना, इनके इम्पीरियल होटल में ये ठहरी हुई थी, जी। मैं इम्पीरियल होटल में इनको ले गया, हम्म और ना मैंने खाना खाया, हम्म और बातें करते करते मैं अपना वहीं सो गया। हम्म। अब साहब जब सोया हूं तो आँख खुली, तो हाथ में इधर रखूं वो वहीं रखा हुआ है, जी पाँव में इधर करूं वो वहीं वहीं का वहीं है। जी। मैंने कहा मैं तो गया, मैं मर रहा हूँ। ये उस आदमी ने जी। वहाँ काजी में वो जहर दे दिया। जी जी मैंने कहा किसी तरह से मुझे घर पहुंचाया जाए। जी तो मारूना पीटना घर पहुंचा। जी घर में ये इंतजार कर रही थी, रात भर सो गए वहां जी 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 शर्ली मैक्लेन के साथ। अब आप समझे कुछ हुआ होगा, क्या होता है यहाँ, जान जा रही थी। जी जी। अब वहां जनाब गए घर। हम्म घर में मैंने इनसे कहा, बीवी से, अरुणा से, कि भाई देखो मैं मर रहा हूँ। जी। तो हंसने लगी। तो कहे देखो मरुन, बात समझ लो जो मैं कह रहा हूँ। हाउस काजी में एक ठेका है, वहां मैं और शर्ली मैक्लेन गए थे, वहां हम लोगों ने 2 पी। उसका पता ये है, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि अभी मैं पास आउट हो जाऊंगा, और फिर तुम मुझे लेके जाओगी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। वहां जब जाओगी तो ये सब बता देना, तो वो जाके चेक कर लेंगे जहर कौन सा था। चलिए जी। अब ये भी हंसी आ जाए, और सास को बुला लिया, अपनी माँ को। जी जी जी। अलार्म बेल। वो दौड़ के गई, जी। एक डॉक्टर को लिए, डॉक्टर बैनर्जी थे मोहल्ले में। राइट राइट। वो आए, उन्होंने पुतली देखी मेरी। जी। मिस्टर नागबी, यू हैव बिकम अ ब्लडी भगोड़ी। ओके। तोबा तोबा तोबा। तो ये तो किस्सा था। जी जी जी। ये देखिए, ये है जोश वलियाबादी, वाह और वाह। ये हमारी खाला हैं, ये हमारी बहनें हैं। जी 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 ये सब। जी जी और ये हैं, ये हमारे बहुत आया करते थे, हमारे नाना के बहुत दोस्त थे। जी जी। बहुत बड़े शायर, आप लोगों ने नाम सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, इनका और इनका बड़ा असर है जी हम जी लोगों का। जी जी इन्हीं के असर में ये जी। अच्छा। जोश साहब का एक ऐसा दबदबा था कि उस जमाने के जितने शुअरा थे जी जी जी। सब उनसे मुतासर हुए थे। राइट। ये एक पहलू है। अच्छा सर, अवध की हम बात करें अभी, हम क्योंकि इस रीजन में हैं, तो आप अवध से, यू बिलोंग टू अवध। जी जी जी। प्लीज तशरीफ। जी जी। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर हिंदुइज्म एंड इस्लाम, दे कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर, दे सेलिब्रेटेड ईच अदर। जो उर्दू में आपकी अवधी, ब्रजभाषी, इनका जो एक कॉन्फ्लुएंस होता था,
उन दिन की कुछ यादें बताएं जब आप जी अब ये देखिए, जी लखनऊ से कोई 70 किलोमीटर दूर रायबरेली है। जी रायबरेली से 20 किलोमीटर आगे है मुस्तफाबाद। ऊंचाहार रेलवे स्टेशन है। जी उस स्टेशन की नवीयत ये थी कि यहाँ इंजन पानी भरता है उन दिनों में। ओके ओके और जी उसके बाद बगल ही में हमारा गांव था। जी गांव नहीं कहते थे, बस्ती कहते थे, जी कस्बा। जी वो वहां सब अपने, यानी पूरा कस्बा है वो अपने ही, जी जैसे कहते हैं जात भाई, सब के सब एक ही, गोया एक ही क्लैन के जी सादात और सब ऐसी। जी सबसे बड़ा घर हमारा था वहां। जी घर में मस्जिद थी, छोटी सी चैपल ऐसा। जी कभी कोई ये नहीं हुआ कि उस पे जबरदस्ती की गई हो कि भाई वहां जाओ। जी लेकिन ये है कि अगर कोई लड़का जाके वहां अजान दे दे जी तो जो अब्बाजान थे, यानी हमारी माँ के चचा, जी वो अब्बाजान कहते थे उन्हें, क्योंकि वो सबकी प्रॉपर्टीज की देखभाल करते थे। वो साहब 1 रुपया देते थे अगर उन्होंने सुन लिया कि किसी ने अजान दी है जाके मस्जिद में। बस इंसेंटिव जी शाम को यही होता था, वो बैठते थे, हम लोग जाकर उनको शेर सुनाते थे। गाने वाली आती थी एक असीमन, जी वो हमारी अम्मा लेडीज। लोग ये समझते हैं जी कि मुसलमान घरानों में और अच्छे जी शुरफा घरानों में जी औरतें जो हैं वो महज उर्दू बोलती हैं। जी ये बिल्कुल गलत फहमी है। जी सिर्फ निखालिस अवधी बोलती थी। जी बोलते जी भैया तुम तो हम कल हंसाए दियो। अरे उसे कह दो कि जरा आज क्या उसे बात कर ले। इस तरह से खवातीन बातें करती थी। जी मर्द बाहर मर्दाने में उर्दू सीधी, जनाने में अवधी। अवधि अच्छा साहब, ये है कि वहां गरारे पहनती हो शर। हमारी नानी साड़ी पहनती थी, जी उनकी 2 बहनें साड़ी पहनती थी, हमारी माँ साड़ी बांधती थी। जी ये सब ये गलत फहमियां जो हैं जी जी कि साहब इनके यहाँ ऐसा है, वो ऐसा नहीं था। जी जी और दूसरा ये कि ये गाने, जी हमारी अम्मा का कई दफा सुना चुका हूँ ये वाकया। राइट उनका एक चीज होती है सोहर गाना। सोहर जी 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 सोहर वो गाना है जो कि जब औरत कन्फाइनमेंट में होती है तब वो गाया जाता है, जब बच्चा पैदा होता है। राइट तो बेहतरीन सोहर हमारी अम्मा का था, जी अल्लाह मियाँ हमरे भैया का दियो नंदलाल, नंदलाल ओ माय अल्लाह गिव माय ब्रदर अ सन लाइक लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा है। जी 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 अब ये लीजिए, ये वृंदावन और इकबाल का शेर जी है राम के वजूद से हिंदुस्तान को नाज, जी अहले नजर जी समझते हैं उसको इमाम हिंद। हिंद यानी जो नजर वाले हैं, जी जो विजन है जिनमें, वो उसको इमाम हिंद समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गालिब से कहा गया कि भैया हमेशा 2 दफा जेल गए, पैसे थे नहीं। जी उनसे कहा गया तुम जाओ अंग्रेज से अपनी पेंशन बहाल करा लो। तो साहब कभी घोड़े पे, कभी पैदल, कभी फीनस में और कभी नाव से। तो गंगा में ये बार्ज पे जा रहे थे, इनको बनारस पहुंचे। इलाहाबाद बहुत बुरा लगा बाय द वे जी इनको। बनारस पे उसने साहब पड़ाव डाल दिया था। वाह वाह। जी जी उसने अपनी सबसे बड़ी नज्म चिराग दैर बनारस पे लिखी। कहता है ओ फारसी में लिखी, जी 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 इबादत खाने नाकूसियानस्त, जी यहाँ लोग शंख से खूबसूरत आवाज पैदा करते हैं। जी हमाना काबे हिंदुस्तान, जी ये सचमुच हिंदुस्तान का काबा है। और इस तरह के पूरी नज्म इसी मूड में है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये सब तो हमारी जिंदगी का
का तरीका था। ये अवधि यानी ये हमारे बिल्कुल यानी कल्चरल कॉमर्स एट द ग्रास रूट लेवल इतना गहरा था जी कि कोई सवाल ही नहीं है। हम लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये हिंदू मुस्लिम क्या होता है। तो क्या ये हाँ, अरे भाई वो आते थे, दुबे जी आ गए, लिहाज किया जाता था कि दुबे जी पानी नहीं पिएंगे, तो उससे कहा भाई देखो वो मिश्रा जी के यहाँ से पानी ला दो। सेंसिटिविटी कोई इसके अंदर वो मजायका नहीं था। जी जी और तो उससे ये हमारा। अच्छा सर, ये बताइए कि जी। क्या ये दौर वापस आ सकता है? अरे नहीं, देखिए, जावेदा पे हम तवा हरदम रवा है जिंदगी, इकबाल और रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, जी मंजिलें गर्द की मानिंद उड़ी जाती हैं, वही अंदाजे जहाने गुजरा है कि जो था। तो ये बढ़ता जाता है, ये पलट के नहीं आती तारीख। तो नहीं, वो एक फेज था, अब ये नया फेज है। अच्छा, आप सर you're a journalist who was born pre Indian independence, तो आपने you've seen that British era also. क्या would you agree कि the British, the seeds of communal divide which was sown then have now turned into a huge 1857 में, right 1857 तक दोनों भाई 1857 की जंग अंग्रेजों के खिलाफ दोनों ने मिलकर लड़ी। जी हिंदुओं ने जी बहादुर शाह जफर से कहा कि तो हमारी अगुवाई करो, राइट तो सब एक साथ लड़े राइट कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये क्या किया, जो हमारा मेन उसूल था तुमने वो तोड़ दिया। वो ये कि हमने डिवाइड एंड रूल हमारा था, राइट और तुमने जाके उनको वो यहाँ पे अवध के बादशाह वाजिद अली शाह को तुमने गिरफ्तार कर लिया, उसको वहां खुदा समझते हैं लोग, हिंदू मुस्लिम दोनों, ये तुमने किया। तो लिहाजा उसके बाद फिर पॉलिसी अंग्रेज ने देख ली कि भाई इनको अलग अलग रखो। अब सुनिए, अब आया साहब गौ हत्या का मामला। 1857 में अगर कुछ दस्ते अंग्रेजों की तरफ डिफेक्ट ना कर गए होते तो अंग्रेज हार गया था तकरीबन। जी तो ये हुआ कि फौज यहां बढ़ाई जाए। फौज बढ़ी तो उसके रिक्वायरमेंट्स बढ़े। उसके रिक्वायरमेंट्स में एक था बीफ स्टेक, तो कसाई जो था वो अपना ही था, उससे कहा गया कि भाई काटो, अब तो फौजें आ गई हैं, इनको चाहिए, तो खंजर हमारे हाथ में पकड़ा गया और था ये उनके हुक्म से। ये किस्सा मुझे कैसे मालूम हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको कि मैं थोड़ा जानता था, बड़े बड़े अच्छे आदमी थे। आपकी तस्वीर भी उनके साथ जी सामने जी, देख रहा हूं अभी हम वहां, इसके बाद सर वहां चलेंगे। जी देखिए जी, वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। वो आरएसएस से निकले थे, लेकिन उनके अंदर एक इवॉल्विंग प्रोसेस था, वो नफरत पे नहीं था, वो हिंदुस्तानी संस्कृति की रीडिस्कवरी। दो उनके, एक तो कन्वर्जन के बहुत उससे उलझ जाते थे, वो अलग बात थी, खैर बहरहाल। तो अटल जी ने कहा कि इस मामले को तय कर लिया जाए, गौ का क्या चक्कर है। उन्होंने आज गांधीयन स्कॉलर थे धर्मपाल, उनको बुलवाया, कहा जरा ये पूरी इसके ऊपर एक रिसर्च की जाए, एक गाय हत्या के क्या मामला। साहब वो स्कॉलर थे, वो साहब इंग्लैंड चले गए, वो ब्रिटिश म्यूजियम में उन्होंने काम किया, और वहां किताब मेरे पास रखी हुई है ऊपर जी। उसमें क्वीन विक्टोरिया का पहले ही पेज पे खत है टू लॉर्ड ईस्टबॉर्न, यहाँ पे जो वो थे वाइस रॉय, कि यू हैव डन वेरी वेल, बिकॉज एज यू नो वी आर द गिल्टी पार्टी फॉर द स्लॉटर ऑफ काउज, but the blame has been taken by the Muslims. And
यू हैव मैनेज द सिचुएशन वेरी वेल। क्वीन विक्टोरिया का खत वो ऊपर लिखा हुआ है, वो मेरे पास ऊपर रखा हुआ है। आप that's the source, that's the genesis, मतलब जो ये पूरा इशू हुआ है उससे पहले भी सर ये भी था। देखिए जहाँ इतने बहुत से लोग होंगे, जी। छोटे बड़े चुटपुट हो जाते होंगे, राइट। लेकिन ये कि ये पॉलिटिकल कम्युनलिज्म, जी जी ये अभी रिसेंट देन है, खासकर जी। पार्टीशन के बाद की देन है। राइट राइट। अच्छा सर, ये दिस पियानो, डू यू प्ले पियानो? नहीं साहब, ये हमारी ग्रैंड डॉटर अच्छा के लिए अच्छा। लाया गया था। वेरी गुड। हमारी वो है उसकी बेटी, वो आजकल जी जी लॉ पढ़ा है उसने, जी जी जी। आजकल अंडर स्टडी है ओके, एक सुप्रीम वी आर कोर्ट के। टॉकिंग अबाउट योर पिक्चर विद वाजपेयी जी सर। जी जस्ट जी शो दैट। आप बैठे में ये है, दिस इज योर इंटरव्यू विद वाजपेयी जी इन 2000। जी जी जी, मिलता रहता था इनसे। जी, जी। जब ये प्राइम मिनिस्टर थे उससे पहले राइट राइट भी जी जी मैं इनसे मुलाकात होती रहती थी। जी, जी। ये हमको अच्छा रैपोर्ट था हमारा इनसे। राइट हाँ, राइट राइट सर। बहुत। जी जी जी। और मैं इनसे बहुत ही इनको मैं बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ। जी। अब सर कुछ सवाल हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ अबाउट मुस्लिम कम्युनिटी इन स्पेसिफिक। जी जी सच एज कि आपको क्या लगता है, व्हाई हैज मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया लैग्ड बिहाइंड इफ यू लुक एट द लार्जर पिक्चर? देखो भाई, जी जी सारा मसला है जी सर। पार्टीशन का। राइट। पार्टीशन में आपने क्या किया? जी हम जब अवध में, हम लोगों को जी पता ही नहीं था क्या हो रहा है। आपको मालूम, लोग समझते नहीं है। जी, लोग जी। समझते हैं पार्टीशन हुआ, जी, जी। उधर से मुसलमान उधर भागे, उधर से हिंदू इधर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी 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 ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी। लोग समझते हैं कि यहां से उधर भगदड़ मची, उधर। साहेब, हम अवध में, कानपुर में, लखनऊ में, जी रायबरेली में, ऊंचा और मुस्ताबाद, हम लोगों को कानो कान खबर नहीं थी क्या हो रहा है। जी जी जी। हुआ क्या? सर सिरिल रैडक्लिफ अवार्ड 20 दिन उनको दिए गए कि किसी तक काट के हिंदुस्तान को 2 टुकड़े करो। जी। वो 2, एक इधर एक बांग्लादेश की तरफ, राइट। जो बंगाल के अंदर। उसमें पंजाब डिवाइड हुआ। जी बांग्लादेश की मैं भी बात ना करूंगा, जो अफेक्ट करता है हमारी जिंदगी को नॉर्थ पे, वो पंजाब डिवाइड हुआ। अमृतसर का मुसलमान लाहौर चला गया, लाहौर का हिंदू अमृतसर आ गया। राइट। ये हुआ। जी बाकी सब अपनी जगह बैठे रहे। राइट। किसी को कानो कान खबर नहीं है कि भाई आपने डिवाइड कर दिया इधर उधर ना। हाँ, फिर जब निर्माण हुआ, ये कहानियां लिखी नहीं गई। इस पीरियड की तारीख को ईमानदारी के साथ हिस्टोरियन ने लिखा नहीं है। मसलन राइट। अताउल्लाह साहब बैठे हुए हैं और बगल में उनके जॉइंट सेक्रेटरी हैं पांडे जी, विश्वनाथ पांडे। कह यार पांडे, ये खत आया है, क्या है? भाई ये ऑप्शन दिया जा रहा है हम लोगों का कि यहाँ रहें कि पाकिस्तान जाएं। यार जिंदगी तो यहीं गुजरी है भाई। पांडे जी ने कहा सोच लो, और भाई तुम जानो, हम तो कहेंगे यहीं रहो भाई। कि यार अगर बाद में यहाँ कुछ गर्मी हुई तो वहां वाले तब कहेंगे, तो वहां वाले कहेंगे कि देखिए ये तो गद्दार थे। जी जी। और चले गए तो तुम कहोगे गद्दार निकला। तो हम जाएंगे, करें क्या? किस्सा सुनाता हूँ जी। हमारे बिल्कुल गोया रिश्तेदार ही समझिए, काजिम रजा डीआईजी ऑफ पुलिस थे यूनाइटेड प्रोविंसेस के, जिसको अब यूपी कहते हैं। जी। पार्टीशन हुआ, वो यही रहे। और जनाब वाली वो उसके गए पंत जी के पास। पंत जी चीफ मिनिस्टर थे। जी। उनका कि साहब मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि अब मेरा चांस है आईजी बनने का। पंत जी ने कहा बैठो। बिठाया, का देखो वहां एक मुल्क बनाया गया है, उसकी स्टेबिलिटी
हमारे इंटरेस्ट में है। राइट। यहाँ तो लोग हैं, वहां कुछ नहीं है। राइट। वहां सेक्रेटेरिएट बनाया गया है कराची में, राइट। तो वहां उसको स्टेबलाइज करने के लिए जरूरी है कि जो अच्छे लोग हैं वो वहां जाएं। सुन लीजिए, जी 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 पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जी जो कि हिंदुस्तान चीफ मिनिस्टर यूपी जी और यहाँ के होम मिनिस्टर, जी उन्होंने यह एडवाइस दी। जी जी जी। और इसी तरह से बहुत से लोग गए कि भाई दरअसल वहां का सेक्रेटेरिएट जो है वो उसको भी तो भरना है, राइट। वरना तो ये पार्टीशन को कोई मानी ना होंगे। यानी क्या पार्टीशन हम करवा रहे थे? जी हैं? जी 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 जी। क्यों भाई? बिल्कुल जब बिल्कुल। हम करवा रहे थे। जी जी जी। तो वो एक चीज है कि लोग इस तरह से, अगर आप देखें तो मुहाजिर जो है जी वो कराची में क्यों है? जी 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 लाहौर में नहीं है, इधर सिंध में नहीं है, और फ्रंटियर में नहीं है। क्यों? जी क्योंकि कराची में सेक्रेटेरिएट था था। पहला, जी 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 और वहां यहाँ से इसी तरह से लोग पठाए गए थे, जी जी भेजे गए थे, और वो जनाब वहीं जाके रह गए। जी लिहाजा कराची जो है वो मुहाजिरों का गढ़ हो गया, जी। जो कि जिनके की जुबान लहजा वो सब इधर का है। बिल्कुल। ये है। तो सर ये ड्रॉबैक्स क्या रहे, जो जो लोग रह गए इंडिया में, इंडियन कम्युनिटी में, उनके क्या? जो लोग रह गए शुरू शुरू में तो यार कोई फर्क ही नहीं था। यहाँ पे ये कहा गया कि साहब आप जाइए, 2-3 खबरें थी और बाकायदा ऑफिशियल, ये कि ये तो टेम्पररी है, ये अभी जैसे पानी पार्ट होता है और फिर वो मिल जाएगा, ये हो जाएगा। जी जी तो लोग, हमारी एक खाला बम्बई में थी, उनके शौहर फौज में थे, जी उनको 2 चॉइस था कि भाई या यहाँ हिंदुस्तानी फौज ज्वाइन करें या पाकिस्तानी फौज ज्वाइन करें। राइट। उनको कोई एक ब्रिगेडियर अहमद रजा कोई थे, तो वो वहां जा रहे थे, उनका वहां आ जाओ तो वहां तुम्हें सहारा मिलेगा। अब ये हुआ कि साहब बाकायदा वो मेजरिंग टेप निकाला गया, तो बंबई से मुस्तफाबाद मेजर करिए जी और उसके बाद कराची से मुस्तफाबाद मेजर कीजिए, स्केल जी मालूम हुआ कि तकरीबन एक ही है। तो साहब चलिए फिर, तो हम हुए हमारी खाला को समझाने के लिए जी। फिर ये वहां चले गए। ये किसी को नहीं मालूम था कि ये खून की लकीर बना दी जाएगी। In India, there are other communities who are not large in numbers, but they have comparatively done fairly well when compared to Indian Muslims. Do you think now, and as a consequence of that, today we have a situation where they are in a kind of not as good position as they could have been? Do you think now is the time for Indian Muslims, or is there a need for Indian Muslims to reimagine their identity? रीइमेजिन करके क्या करें? देखिए, मेरी थ्योरी दूसरी। Right. मसला हिंदू को हमसे नफरत नहीं हो गई एकदम से ओवरनाइट, Right. ना मुसलमान को हिंदू से हो गई। Right. मुसलमान को तो होती ही नहीं, है ही नहीं। वजह माइनॉरिटी सिचुएशन में होते हुए जी हर मुसलमान हिंदू के बीच में रहता है। सुबह उठा तो शर्मा जी से मुलाकात हुई, गाड़ी में बैठा तो अरविंद से मुलाकात हुई, दफ्तर गया तो चारों तरफ हिंदू हैं, लिहाजा उसको सुबह से शाम तक हिंदुओं के बीच में रहता है। उसके दिमाग में ओगर्स नहीं पैदा होते। राइट। हिंदू जो है वो मुसलमान से उसका कोई एक्सपीरियंस खत्म हो गया है। राइट। उसके दिमाग में एक अपार्थाइड आ गई है। मैं कहता हूँ भाई अभी आने वाली है रमजान, चलो जामा मस्जिद चलो। अच्छे खासे समझदार लोग घबराए जाते यार, वहां मुसलमान बहुत है, राइट। अब मुसलमान खा जाएगा तुम्हें। ये जो है, क्योंकि इतना इनकैंटेशन और इतना प्रोपेगेंडा हुआ है कि उससे लोग, एक दफा मैंने इसको यहाँ पे जब
मेघनाथ देसाई थे जी और ये स्वामी अग्निवेश थे। जी जी मैंने इन दोनों से कहा, मैंने कहा चलो हमारे साथ, तुम्हें हम रमजान में सवेरे सहरी खिलाते हैं। जी जी। ले गया इनको। अच्छा। अग्निवेश करने का, हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल में, क्या हमें तो शाकाहारी चाहिए। मैंने कहा मैं घर से शाकाहारी ले चलूंगा आपको। राइट तो लेके गया जी जी ताकि देख तो लो, देखो ये भी लोग हैं यार, राइट और ये कोई जानवर नहीं है, तो एकदम से भभोग नहीं लेंगे। जी जी लेकिन दिमाग में होते 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 वो एक जहर उतार दिया गया है। जी। आप आज मुझे एक टेलीविजन चैनल दे दीजिए, चैनल, अगर मैं बदल ना दूं तो मेरा नाम सईद नकवी नहीं। जी और वो मीडिया भी किस चीज को फरोग दे, किस चीज पे डिस्कशन कराए। जी एक जमाने में हर प्रोग्राम के बीच में एक बहुत ही नामुराद मुल्ला बिठा दिया जाता था जी और वो बेवकूफ़ी की बातें करता था, और वो और उसको प्रोजेक्ट किया जाता था कि ये मुसलमानों का नुमाइंदा है। हम शर्मिंदा होते थे। जी। है क्या कि यहाँ पे इत्तेफाक से हमारा एक कर्ज है, हमारी जातिवाद, कास्टिज्म। राइट। Communalism is a political project. Casteism is an ancient social habit. राइट। इसको ढांपने के लिए इसको बढ़ाया जाता है। ओके। इसकी पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जाता है जी। उसको ढांपने के लिए। जी ये है। अब ये चीजें बाद लोगों को समझ में नहीं आती। जी। और अभी देखिए कुंभ चल रहा था जी। तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा बेटा तुम भी चले जाओ। मैंने बाकायदा उसका बंदोबस्त किया। अब ये कुंभ वगैरह ये बड़ी खूबसूरत, यानी उसमें यहाँ हिंदुस्तान की चीजें थी। ये भाई हम हिंदुस्तान का म्यूजिक, हिंदुस्तान की शिल्पी कला, हिंदुस्तान का वेद, हिंदुस्तान की आयुर्वेद, हिंदुस्तान में ये इतना कुछ है जो कि दुनिया में नहीं है। वो सब छोड़ के नफरत। अच्छा सर, एक बात बताइए, अब हम बात करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, बिकॉज आप यू सच अ लर्नड एंड एक्सपीरियंस्ड मैन। अगर हम एजुकेशन की बात करें इंडिया में मुस्लिम्स की, तो उसके व्हाट आर योर व्यूज? क्या आपको और मदरसा एजुकेशन जो है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए इतना बड़ा मुल्क है कि इसको और इतनी जुबानें हैं जी, और इतने मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जी, इतनी मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, जी, मल्टी लिंगुअल जी, ये मुल्क है। जी, अब इसको प्यार से जोड़ के रखना है कि आपको तलवार की जोर से और सेंट्रलाइज सिस्टम से जी, करना है। जी। ये आप सेंट्रलाइज सिस्टम आप लगाएंगे टूट जाएगा। ऑलरेडी द हिस्ट्री of the country is that we are 3 nations, India, Pakistan, Bangladesh। और अगर आपने उसको ब्रिटल बना दिया तो ये, इसलिए इलास्टिक छोड़िए, फेडरल इंडिया जो है वही, यानी इस अपने लेट अस 100 flowers bloom, राइट। ये है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन सर। तो एजुकेशन में क्या किया जा सकता है? देखिए एजुकेशन के बारे में, अगर दिल्ली की एजुकेशन के बारे में बात की, आई एम टॉकिंग अबाउट रूरल, लेकिन दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और ये इन हर जगह की जरूरियात मुख्तलिफ है, राइट, कल्चर मुख्तलिफ है, बिल्कुल, बैकग्राउंड मुख्तलिफ है। लिहाजा इस सबको एक साथ लेना, अच्छा मदरसा सबका कॉमन है, राइट, लेकिन वहां तो उनके हिंदू की जुबान तो वहां टामिल है, राइट, समझे? तो इसलिए मदरसा जो चीजें तुमको अलग करती हैं, मेरे ख्याल में उनको धीरे धीरे फेज आउट करना चाहिए और वो इंस्टीट्यूशंस वो लाना चाहिए जिससे कि संगम बढ़े, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख ये तफरीके मालूम ना हो। जैसे कि हमारे बचपने में जब हम थे, हमारे दोस्त विनोद मेहता, हमारे दोस्त अशोक क्वात्रा, हमारे दोस्त आज़ाद अहमद खान भी, ये सब
पता ही नहीं चलता था कौन हिंदू है कौन मुसलमान। बेशक। अच्छा सर, अब हम बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, स्पेशली अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी दैट हैज बीन अ बिग प्रॉब्लम, यू नो। इसके बारे में कभी सोचा आपने सर, इसका हाउ कैन वी? देखिए, उसमें यह है कि जब माइनॉरिटी सिचुएशन में, जी। जबकि एक कम्युनिटी के ऊपर वो बिसीज महसूस कर रही है, वो लगे ये हमारे खिलाफ है, राइट। ये सब हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, जी जी ये हम पर हमला है, जी जी। और हमारी आइडेंटिटी पे हमला है। इस मेंटल कंडीशन में जब एक कम्युनिटी है, उसको आप रिफॉर्म करने की कोशिश ना करिए, वो गलत समझेगी। राइट। वो समझेगी कि आप कुछ अपना थोपना चाह रहे हैं, क्योंकि हम पीछे दबे हुए हैं। ये जब रिलैक्स होगा, ये सब रिलैक्स एटमॉस्फेयर की चीजें हैं, जो बिल्कुल फजा साफ हो, तब समझ में आएगा कि यार ये गलत था, ये सही है। बट सर, सवाल ये भी तो उठता है कि फिर रिलैक्स एटमॉस्फेयर वो कब आएगा? 75 साल, वी आर नाउ मोर देन 75 years. Why are we not thinking about it? क्योंकि ना विमेन एम्पावरमेंट से पूरा एक खानदान एम्पावरमेंट हो जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि मर्द को तालीम दो, जी। वो नौकरी कर लेता है, जी। औरत को तालीम दो, जी। पूरा कुनबे को सिखाए, तालीम देती। Exactly. ये सही है। राइट। लेकिन ये अभी मुसलमानों के यहाँ पसमानदगी इस वजह से है, तो एक तो वो बहुत जल्दी गिरफ्त में आ गए क्लर्जी की, मौलवी साहबान की, उनकी गिरफ्त। मौलवी साहबान की गिरफ्त को बजाय इसके कि ढीला किया जाए, उसमें ढील दी जाए, उनको और मजबूत किया गया। क्यों? वो गोया कॉन्ट्रैक्टर हो गए। एक अपार्थाइड सिस्टम है, वहां मुसलमान रहता है, उस पूरे कबीले का ठेकेदार ये एक मुल्ला है। इस मुल्ला को तुम पकड़ लो, समझे, तो वो गोया आपकी पहुंच उस तक हो गई। अब मुल्ला ये चाहता है कि अपनी जगह संगठित रहे, तो उसके नए आइडियाज आए और ये तो बिखर जाएगा। लिहाजा वही इसको हिफाजत अपनी करो पहले, अपने सेल्फ इंटरेस्ट की करो पहले, और उसको वही उन दायरों में बांधे रखो जिससे बाहर निकलेगा तो ये फिशार आ जाएगा इसके अंदर। डेवलपमेंट नुकसानदेह है। राइट। Now, sir, we will now go to the last section of our interview, but of course, we'll go in another setting which is equally beautiful. Let's go there, sir. Sir, you have been a witness to so many important world events, and you have seen the development through 80s, 40s onwards, how things have rolled out in world history, world events. Now, we see that today the world has improved on several parameters, may it be life expectancy, health, education, freedom. There are many parameters where today we are at a very good position. Yet, like American, the stand-up comedian, is now also a thought leader. He says that everything is amazing in the world, but nobody is happy. Why is it so? The success is technological success. AI, maslan. This is technology. This is technology driving life. Industrial Revolution, World War II, इसके बाद जो ह्यूमन वैल्यूज जो हैं उन पे एक अटैक, they became subservient to the march of science and technology. Certain things happened. The breakdown of the family. You see, the human values were nurtured in large families, and but they were economically non-productive. You follow? You're virtually, it is nostalgia of the feudal system. So that is one thing that happened. Families broke down. When families broke down, you started having a
the family unit became husband, wife, and a child. Then the wife was also working. Then the whole society underwent a change. And now you've reached a point where they're not getting married at all. ये सारा संतुलन जो पुराना था वो बदलते बदलते अब इस जगह पे ले आया है जिसमें कि अब नेचुरली a group where a kabila which grew up with 20 children of all ages and a unit with one child, and now a single parent with one child. They are completely different attitudes and give completely different attitudes to the child. This kind of pedophilia that you're seeing, it was not possible then. Right. Because people had grown up with children adoring them. Right. Now, the children are someone else's children. Right. One child, someone else's child. And I am alone in this city. And I need something that is vulnerable. And I have lost the kind of human decency which used to shape people in the previous era. Right. That decency, the sharafat, Yes. uski kami. Absolutely. So you talked about technology, how it has overtaken, kind of humanity, but the social media algorithms. Today it appears that thinking man has no value at all anywhere in the world, in any world society. Do you think so? It had begun to happen when the smartphone came. There was children sitting there, no one talking to each other, Yes. looking at their smartphones and sending messages on the smartphone, like me to you and you to me. So that happened. Right. But these are, अब इसको न ये अच्छा कह सकते हैं न बुरा कह सकते हैं, ये एक फेज है, ये भी बहुत अच्छा खूबसूरत फेज नहीं है, लेकिन है और ये भी गुजर जाएगा. Right. Like they say, every generation, says that, their generation was better. So maybe we are also thinking on those lines. But so now we'll talk about the political systems. You've seen capitalism, you've seen communism, you've interviewed great leaders. I won't say successful leaders, but great leaders like Gorbachev and others, and you've also, interviewed some top world leaders who were into, communism. But communism is now almost, it's been written off, it's not there. Yet capitalism also, it's been felt that it also needs some kind of recalibration in some new form. How do you see these major two ideologies shaping up in world politics in the future? They coexisted once upon a time. The most peaceful period in my life, I think, was when the Cold War was on. There were two bipolar worlds. Right. That there was a balance of terror between them, and we, in between, under that Chhatr Chaya, Right. had a very peaceful life. Yes. Very. It is when the collapse of the Soviet Union and the rampaging rush of which should have been seen, the collapse of the Soviet Union should have been seen as the victory of human rights, as the victory of democracy, as the victory of rule of law, as victory of values. Instead, it was sold and marketed as a victory of the market. Right. It was sold as a, and that it, so grab. It's carrying on today. Mr. Trump wants to take over Gaza and develop it into a Riviera, Right. forgetting, no mention of 50, 60,000 children, women having been killed in that genocide. Right. So this dehumanized rush for mammon, for capital, is the problem. Now what is happening in Europe? The old-fashioned liberal democracy is out of fashion. Now you go to Viktor Orban in Hungary, Yes. you see Le Pen in Marine is a fascist.
Yes. in France. Mhm. She is supporting this government of Mr. Emmanuel Macron. He would fall if she didn't support the budget. Right. You see, you're getting the alternative for Germany. In Germany, you're getting uh, throughout Europe, Right. there is a right and fascist kind of right Mhm. coming to the fore. Right. This is the crisis not of democracy. Right. This is a crisis of capitalism. Why? Mhm. When a politician talks about the people's issues, bread and butter issues, the consequence of that automatically should be that people's issues should be addressed. So you need to have social welfare schemes. You need to have, in a poor country, social welfare schemes. You need to have health, Mhm. education, guaranteed food supply, to bread to on every table. Right. Now, all of this requires money. It happened once. During the Great Depression, Mhm. it's a very funny, there's one American president, the most popular president ever. He won 4 times. He died in the fourth term. Right. That was Franklin Delano Roosevelt. Right. He spoke to the communists. He spoke to the socialists. He spoke to the trade unions. And he guaranteed 15 million jobs. Where was the money going to come from? He taxed the rich. Right. He taxed the rich. And America came out of depression. The most popular American president today has become a bad name. न्यू डील की बात मत करो. Right. अब ये है कि न्यू डील, immediately after that, you had in America people like McCarthy, McCarthyism. You know, he was finding communists under every pillow. Right. So therefore, you had a reaction. Why? Because the capitalist has got hand in glove with the politician. Mhm. The politician does his bidding, Right. and whatever the people get, they get by default, more or less. So instead, if policies were framed for the common people, then there would have to be, the rich would have to be taxed more. Right. You can't have a system in which 1% of the people have 90% of the wealth. This inequality is the bane. It will create revolutionary situations in many societies. So, what are your views about the welfare state, the charitable state, which is now being said, where the governments give give money, support money to direct transfers? What we had at the outset was we called the mixed economy. Tatas and Birlas were allowed to make their money. Right. But a lot of social welfare schemes are also there. Yeah. There was also the Panchayati Raj system has got to be strengthened here. Right. Democracy at the grassroots has got to be strengthened here. This whole system being hijacked by capitalists. Right. Now, sir, my last question to you would be that कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? How are you keeping yourself busy? What are your plans? I write. I'm trying to finish a book, which is all my years of the 110 countries that I told. I mean, I have been to, not just touch there and have a holiday, but gone, met the leaders, seen the wars, done all of that in 100, and without having the label. I was not BBC, I was not New York Times, Yes. I was not any of those things. It was just simple drive and a little goodwill, a capacity your reputation. to earn the goodwill Right. of people on all sides. Right.
And that was, I suppose, that came from my lovely place called Lucknow. Right. If you've grown up there, you learn not to offend anybody. Right. Lovely, sir. So we're really looking forward to your book. When is it likely to come out? At the end of the year, maybe. Wonderful, sir. So thank you so much. It's been really a pleasure and a privilege to have this interaction with you. Lovely that you came. Right. I really enjoyed it. Thank you very much. Adab, sir.